إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تجوید القرآن کے اس کورس میں آج ہمارا دوسرا درس ہے. پہلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ تجوید القرآن کی اہمیت کیا ہے، ہمیں کیوں تجوید سیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور تجوید کا معنی کیا ہے. ساتھ ساتھ میں پہلے درس میں ہم نے یہ بھی جانا کہ عربی میں حروف الہجا جن کو ہم الفابیٹس بھی کہتے ہیں ان کی تعداد 29 ہے یا 28 ہے. اگر ہم الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو تعداد 28 ہو جاتی ہے. البتہ اگر ہم الف اور حمزہ کو الگ الگ جانیں تو تعداد 29 یعنی 29 ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تجوید جو ہے اس کو جاننے کے لیے ہمیں بیسیکلی دو چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. پہلا یہ کہ ہمارے پاس جو حروف الہجا ہے جن کو ہم الفابیٹس بھی کہتے ہیں، ہر ایک یعنی حرف الہجا یعنی جس کو ہم الفابیٹ کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک، ہر ایک حرف کا الگ مخرج ہوتا ہے. مخرج کا مطلب یعنی کون سے منہ کے حصے سے وہ ادا ہوتا ہے، اس کا اخراج کہاں سے ہوتا ہے، ہمیں یہ جاننا پڑے گا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اور ہر ایک حرف کے ساتھ مختلف صفات یعنی کوالٹیز جڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ حروف جو ہے وہ تیز پڑھے جاتے ہیں، کچھ نرم پڑھے جاتے ہیں، کچھ موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ پتلے پڑھے جاتے ہیں، کچھ کو لمبا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلدی ادا کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہمیں نون کی آواز کو منہ میں چھپانا پڑتا ہے، کبھی اس کو ناک میں لے جانا پڑتا ہے. اسی طرح باقی کچھ حروف کے بہت سارے صفات ہیں. تو تجوید میں ہم حروف کے مخارج جانتے ہیں، ہر ایک حرف کا اس کا صفت جانتے ہیں، کون کون سے اوصاف ان کے ساتھ جڑے ہیں. ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقوف یعنی کہاں کہاں ہمیں قرآن مجید پڑھتے وقت وقف کرنا ہے، کتنا وقف کرنا ہے، کیسے وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں ٹھہرنا ہے. آج کے درس میں تجوید القرآن کے اس کورس کے آج کے درس میں ہم جانیں گے مخارج کے بارے میں. تو آج کا جو درس ہوگا وہ مخارج کے بارے میں ہوگا. انگریزی میں مخارج کو دا آرٹیکولیشن پوائنٹ بھی کہتے ہیں. آرٹیکولیشن پوائنٹ یعنی وہ حصہ جہاں سے ہمارے پاس حرف ادا ہوتا ہے. مخارج جو ہے اصل میں مخرج کی جمع ہے اور حرف کی آواز کے نکلنے کی جگہ کو ہم مخرج کہتے ہیں. یعنی جہاں سے ہمارے پاس کوئی بھی حرف منہ سے ادا ہوتا ہے اس حصے کو ہم مخرج کہتے ہیں. اور مخارج جب ہم نے کہا تو یہ مخرج کی جمع ہے. اور کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ہم ساکن کر لیتے ہیں. پہلے ہم اس پہ الف لا کے اس پہ زبر کر دیتے ہیں، وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور جہاں اس حرف کی آواز ختم ہو جاتی ہے وہی اس کا مخرج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس آج یعنی جیم کو آپ نے ساکن بنایا. اگر آپ کا جیم کا مخرج جاننا ہے، جیم سے پہلے الف کے اوپر زبر جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں کیونکہ الف خالی ہوتا ہے. اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش دیکھیں گے تو وہ الف نہیں مانا جاتا، وہ حمزہ مانا جاتا ہے. اور جس حرف کا آپ کو مخرج جاننا ہے اس کو آپ ساکن کیجئے، اس سے پہلے الف کو زبر دے دیجئے یعنی حمزہ بنائیے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آخر کی آواز کہاں ختم ہوتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا آپ اس حرف کو اس پرٹیکولر مخرج یا آرٹیکولیشن پوائنٹ پہ ادا کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو صحیح، نہیں کرتے ہیں تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کون سا حرف کس مخرج سے نکلتا ہے وہ ہمارا ٹاپک رہے گا، مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مخرج کو جاننے کے لیے
किसी भी हर्फ के मखरज को जानने के लिए या ये जानने के लिए कि क्या मैं वो हर्फ मखरज से अदा कर रहा हूँ, तो उस हर्फ को हम साकिन बना के उससे पहले अलिफ को ज़बर दे के जिन्हें हमजा बना के उस हर्फ को पढ़ते हैं। जहां पर हमारी आवाज़ ख़त्म हो जाती है हमें इंडिकेट करना पड़ता है कि क्या हम उस मखरज से उस हर्फ को अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने आज जीम का मखरज, आम, अब देखिए मीम कहाँ अदा हो गया, कौफ का मखरज। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि मखारिज ये मखरज की जमा है और मखरज मुंह के उस हिस्से को कहते हैं जहां से वो हर्फ अदा होता है। अंग्रेजी में हम अगर बताएं तो मखरज जो है वो आर्टिकुलेशन पॉइंट कहलाता है, द प्लेस फ्रॉम विच द साउंड ऑफ ए लेटर ऑरिजिनेट्स, यानी वो जगह मुंह की जहां से हमारे पास वो हर्फ निकलता है, हम उस हर्फ को उसका मखरज जानते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुंह में जब मैं बात करता हूं मुंह की, तो मुंह से मुराद हमारे होंठों से लेके हमारा ये जो पूरा गला है जिसको हम थ्रोट कहते हैं अंग्रेजी में, मुंह से लेके यानी होंठों से लेके हमारा पूरा गला, उसके बीच में जो हमारे दांत आते हैं, जुबान आती है, इस पूरे एरिया को हम मखारिज की मतलब मखारिज का गार कहते हैं या मखारिज कहते हैं। तो इसमें उलमाए दीन जो है तजवीद के, उन्होंने इन मखारिज को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। यानी हमारे पास 5 किस्म के आर्टिकुलेशन पॉइंट है। सबसे पहले है अल हलक। अल हलक मीन्स थ्रोट, हमारा जो गला है। अरबी में हमारे इस गले से कुछ हरूफ अदा होते हैं, उन हरूफ को जो हलक से अदा होते हैं उन हरूफ को हम हरूफुल हलकी भी कहते हैं। हलकी ये हा से है, हलकी, अल हलकी उन हरूफ को, और हलक को हम कहते हैं थ्रोट, हमारा गला, इससे कुछ हरूफ अदा होते हैं। तो हलक सबसे पहला हमारे पास मखरज है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास मखरज है जहां से हरूफ अदा होते हैं वो है हमारी जुबान। अरबी में इसको कहते हैं अल लिसान। अल लिसान यानी जुबान, जुबान के मुख्तलिफ हिस्से से हमारे पास मुख्तलिफ हरूफ अदा होते हैं। तीसरा जो मखरज हमारे पास हमारे मुंह में है वो है हमारे 2 होंठ। अरबी में इनको अशफतान कहते हैं या अशफताइन कहते हैं। तो ये जो दोनों होंठ है उनको मिलाने के साथ हमारे कुछ हरूफ अदा होते हैं। चौथा जो हमारे पास मुंह में मखरज है वो है अल जाउफ। जाउफ कहते हैं हमारे मुंह में जो खाली जो स्पेस रहती है, जिसको हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, खाली स्पेस, यानी जब आप मुंह नॉर्मली बंद करते हैं अंदर जो खाली स्पेस होती है उस खाली स्पेस को अल जाउफ कहते हैं। इस अल जाउफ से भी कुछ हरूफ अदा होते हैं। और आखिर में हमारे पास जो मखरज है वो है अल खैशूम। अल खैशूम कहते हैं नाक के बांसे को। ये जो हमारी नाक है उसके अंदर जो बांसा होता है, खाली स्पेस होती है, इसको अरबी में अल खैशूम कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास मखारिज की 5 बुनियादी किस्में हो गई या 5 हमारे पास मोटे मोटे मखारिज हो गए। सबसे पहले हलक, थ्रोट, गला हमारा, अल लिसान हमारी जुबान, हमारी टंग, अशफतान हमारे 2 होंठ। और अल लिसान जब मैं कहता हूं तो अल लिसान के साथ असनान भी आते हैं, दांत भी आते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जबान के हिस्से मुख्तलिफ दांतों से मिलकर हमारे पास कुछ हरूफ अदा होते हैं। इसी तरह हमारे पास चौथा जो यानी मखरज है वो है अल जाउफ, मुंह का, माउथ का खाली स्पेस। और लास्ट में हमारे पास है अल खैशूम, ये नाक का बांसा है। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि मेजर जो एरियाज ऑफ हमारे पास आर्टिकुलेशन पॉइंट है, मखारिज है, ये 5 है। इन 5 को आप ज़हनीशीन कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, क्योंकि अब हमारा लेक्चर इसी पे होगा कि हलक से कौन हरूफ अदा होते हैं, लिसान वल असनान यानी जुबान और दांतों के मिलने से कौन हरूफ अदा होते हैं, शफतान हमारे होंठों के मिलाने से कौन हरूफ अदा होते हैं, अल जाउ से कौन सा हर्फ अदा होता है, किस कंडीशन में अदा होता है, और अल खैशूम में कौन सा हर्फ अदा होता है, कैसे अदा होता है। ये हमारा टॉपिक अब आने वाले क्लासेस में इंशाल्लाह रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया कि हमारे पास 5 मुख्तलिफ यानी हिस्से हैं मुंह के, जहां से हमारे पास 28 या 29 हरूफ अदा होते हैं। सबसे पहले है थ्रोट, अल हलक।
तो इस हलक से हमारे पास 6 हरूफ अदा होते हैं, जो कि 3 मुख्तलिफ जगहों पे अदा होते हैं। यानी हमारे पास जो गला है, गला का वो जो हिस्सा जो हमारे मुंह के साथ मिला है, हमारे माउथ के साथ मिला है, वो एक हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जो हमारे लंग्स के साथ मिला हुआ है, फेफड़ों के साथ मिला है। इस तरह के 3 अलग अलग हिस्से हमारे गले में, जिससे हमारे पास 6 हरूफ अदा होते हैं। अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप उर्दू नहीं जानते तो आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास अल लिसान वल असनान, यानी जुबान और दांत। जुबान के मुख्तलिफ हिस्से को मुख्तलिफ दांतों से मिलाने के साथ हमारे पास तकरीबन 18 हरूफ अदा होते हैं। यानी 29 हरूफ में से 18 हरूफ, 18 हरूफ हमारे जुबान और दांतों के मिलाने से होते हैं। तो 18 प्लस यहाँ पर 6 हो गए, तो इस तरह हमारे पास 24 हरूफ अदा हो गए। इसके बाद हमारे पास 2 होंठ है। दोनों होंठों को मिलाने के साथ अशफतान को, अशफतैन को मिलाने के साथ हमारे पास 4 हरूफ अदा होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये हो गए 18, 18 प्लस यानी 18 प्लस 6 हमारे पास हो गए 24, और ये 4 बन के हमारे पास 28 हरूफ आ जाते हैं। तो अल हलक, अल लिसान, अशफतान, ये 3 जो हमारे पास 5 में से मखारिज है या आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है मेजर एरियाज के, इनमें से हमारे पास 28 हरूफ अदा होते हैं। उसके बाद जो 5वां हिस्सा है जिसको अल जाउफ कहते हैं, यानी मुंह का खाली हिस्सा, इसमें 3 हरूफ स्पेशल कंडीशन में अदा होते हैं। यानी हमारे पास जो हरूफ मद्दा है, मद्दा वाले ये वो हरूफ जिनको लंबा और खींच कर पढ़ा जाता है, उसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ याद रखिएगा, यानी हरूफ मद्दा ये एक स्पेशल कंडीशन होती है। वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो, और अलिफ के ऊपर जबर हो या अलिफ के ऊपर अलिफ हो। इन 3 कंडीशन को हम कहते हैं हरूफुल मद्दा, और ये हरूफुल मद्दा जो है ये अल जाउफ से अदा होते हैं। उसके बाद हमारे पास 5वां जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है जिसको हम अल खैशूम कहते हैं, नोज कहते हैं या नाक का बांसा कहते हैं, इसमें हमारे पास 2 हरूफ अदा होते हैं, वो भी स्पेशल कंडीशन में, एक नून दूसरा मीम। जब उन पे तशदीद हो उस वक्त इनकी आवाज को हम नाक में ले जाते हैं, उसको हम गुन्ना कहते हैं। ये चीज भी हम तफसीलन पढ़ेंगे, अभी आपको मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो पहले 3 मेजर एरियाज ऑफ आर्टिकुलेशन है, या 3 किस्म के जो मेजर एरियाज ऑफ मखारिज है, उन्हीं में से हमारे पास 28 हरूफ अदा हो रहे हैं। हलक से हमारे पास 6 हरूफ अदा हो रहे हैं। अल लिसान यानी जुबान वल असनान हमारे दांतों के साथ मिला के 18 हरूफ अदा हो रहे हैं, और अशफतान होठों को मिलाने के साथ हमारे पास 4 हरूफ अदा हो रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास 28 हरूफ अदा हो गए। अल जाउफ और अल खैशूम ये 2 स्पेशल किस्म के हमारे पास मखारिज है, जिसमें हरूफ स्पेशल कंडीशन में आ जाते हैं। अल जाउफ सिर्फ वो हरूफ जो हरूफुल मद्दा है, यहां से अदा होते हैं, और अल खैशूम सिर्फ नून और मीम जबकि उनके पास तशदीद हो, जिसको हम गुन्ना कहते हैं। इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने मैंने स्लाइड दे दी। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 5 मेजर एरियाज ऑफ आर्टिकुलेशन है, यानी जिनको हम मखारिज कहते हैं 5 किस्म के, उसमें सबसे पहले हलक हमारा गला, उसके बाद हमारे पास अल लिसान वल असनान यानी जुबान और दांतों के मिलाने के हिस्से से हमारे पास 32 दांत है। जुबान के भी अलग अलग हिस्से हैं, कौन सा हिस्सा किस दांत से मिलाएंगे इससे हमारे पास हरूफ अदा हो रहे हैं, क्योंकि अरबिक जबान जो है इसमें इन चीजों का काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि जाल और जा में क्या फर्क है, और दोनों को अलग अलग जुबान के हिस्से को अलग अलग दांतों के हिस्से के साथ मिलाने से अदा होता है। इसके बाद अशफतान हो गया। अशफतान मतलब 2 होंठ, ये तीसरा मखरज है। इसके बाद अल जाउफ जो मुंह का खाली हिस्सा है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन लाइट में। उसके बाद अल खैशूम जो आप यहाँ पर यानी पिंक कलर में देख रहे हैं, लाइट ब्राउन में, इन्हें नाक का अंदरूनी हिस्सा अल खैशूम कहलाता है। इस तरह हमारे पास 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट है जिनसे हमारे पास 28 या 29 हरूफ अदा होते हैं। अब जो आज का टॉपिक रहेगा, इसी मखारिज में से हम सबसे पहले मखरज उठाएंगे जिसको हम कहते हैं अल हलक।
यानी मेजर आर्टिकुलेशन पॉइंट में सबसे पहले हमारे पास है अल हलक, यानी हमारा गला। जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि अल हलक जो है, हमारा जो गला है, इसमें 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट से, यानी 3 अलग अलग मखारिज है। आप देखिए, ये हमारा गला है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के साथ, यानी मुंह के फौरन बाद जो शुरू होता है गला, इसको हम अदना हलक कहते हैं या अदनाए हलक कहते हैं, यानी टॉप ऑफ द थ्रोट। इसके बाद मिडल जो हमारे पास गला है, इसको हम वसतुल हलक कहते हैं, यानी मिडल ऑफ द थ्रोट। और उसके बाद आखिर हिस्सा जो हमारे गले का है, जो हमारी छाती के साथ मिल रहा है, इसको हम अक्सल हलक या अक्साए हलक कहते हैं, बॉटम ऑफ द थ्रोट। तो इस तरह हमारे पास हलक में 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों पे। अदना हलक जो है, यानी पहला हिस्सा जो गले का है, उससे हमारे पास खा और गैर। अब आप मेरी आवाज पे गौर कीजिएगा, खा थोड़ी सी खराश होगी, खा, और थोड़े होंठ जो है वो गोल भी हो जाएंगे। आप मेरे साथ इसको दोहराइए, खा गैन। खा थोड़ी सी खराश के साथ, थोड़ा मोटा करके, खा। और आप देखिएगा कि पहला जो गले का हिस्सा है, वहां से इनको हमें अदा करना है, खा गैन। और उनको अच्छी तरह से जानने के लिए अख, हमजा को जबर के साथ लाइए, खा को साकिन बनाइए, अख अख। अब देखिए ये अदा हो रहा है। अगर पहले हिस्से से अदा हो रहा है, बिल्कुल मुंह के खत्म होने के बाद अदा हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो ये खा का मखरज है, ये अदा हो रहा है। इसी तरह अग, 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 गैन, अग, गैर, अग, गैन को, अग, गैन को आप देखिएगा, ये अदना हालत से अदा होना चाहिए। गले का जो पहला हिस्सा है, वहां से अदा होना चाहिए। मिसालें हम देंगे, अभी आप याद रखिएगा कैसे इसको अदा करना है। उसके बाद वसतुल हलक, गले का दरमियानी हिस्सा, इसमें हमारे पास 2 हरूफ अदा हो रहे हैं। और बरसगीर में रहने वाले जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, उनमें से ये आइन और हा, वसतुल हलक के हरूफ अदा करना थोड़ा टफ हो जाता है। कैसे अदा करना है? हा, हा, दरमियानी हिस्सा, यहां पर बीच वाला हिस्सा, हा, याद रखिएगा, हा, अह, अह सनत, अह, अह, आप अदा कीजिएगा, अह। इसी तरह आइन, आइन, आप देखिए आइन, ये गले के बीच वाले हिस्से से अदा होता है। अन अमत, अन अमत, आइन से, अन अमत, ठीक है। आइन को याद रखिएगा, अन अमत, आइन, ठीक है। इसी तरह मिनल हुस्ना, हुस, हु, हा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आखिर के 2 हरूफ जो हलक से अदा हो रहे हैं, ये अकसल हलक से, वो है हमजा और गोल हा। हमजा हा, इनको अदा करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये आवाज के साथ बिल्कुल बाहर निकलते हैं। हमजा हा, हमजा हा। अब आप यहां याद रखिएगा, ये जो गोल हा है और ये जो मिडल हा है, हा, इसको हम हलवे वाली हा भी कहते हैं, यानी बड़ी हा। और इसको हम गोल हा कहते हैं, हुदा वाली हा। इस और इस हा में आपको फर्क करना है। मुझे पता है कि पहले पहले आइन और हा पढ़ने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, मगर प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह अल मुस्तान ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना याद रखिएगा कि ये जो गोल हा है और ये जो ये वाली हा है, इसमें हमें फर्क करना है। कैसे पढ़ेंगे? वसतुल हलक वाला हा, 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 अह, हा, हुस्ना, अहसनत, मिनल मुहसिनीन, मुह, मुहसिनीन, ठीक है। और ये हा सीधा है, इहदिना सिरातल, इह, बिल्कुल आवाज के साथ, इहदिना सिरातल, इह, बिल्कुल जैसे आपने फेफड़ों से आवाज बिल्कुल ऊपर निकाली, इहदिना सिरातल, इह, ठीक है, बिल्कुल आसान। इसी तरह हमजा से, अनअमत, अन में जो अलिफ के साथ जबर है, ये असल में हमजा है, तो अन हमने पढ़ा, मगर उसके बाद आइन है, अन अमत। फर्क करना है, पहले अन को फिर दूसरे अन के साथ, अन अमत, पहले तो हमजा है, उसके बाद आइन है, अन अमत,
इसको आपको फर्क करना है। अगर आपने ये फर्क करना जान लिया, इनका मखरज आपने जान लिया, इस पे आपने कोशिश कर ली, और चूंकि आपका पहला पहला अगर ये दर्स होगा या पहली बार आपकी कोशिश होगी, तो अभी से आप घबराइए नहीं, इसमें टाइम लग जाता है। मैंने जैसे पहले ही अर्ज किया, अरब के रहने वालों के लिए आसान है, उनको पहले से आदत है। हम लोगों को ये चूंकि पहले से पता नहीं होता, आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये अदा हो जाएगा, और प्रैक्टिस के साथ ये मजीद बेहतर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले ये जो तीन हमारे पास मखारिज है, जिनसे हमारे पास दो दो हरूफ मिलके 6 मखारिज हो गए, उनको हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले आप आखिर वाला मखरज जानिएगा, अक़सल हलक। यहाँ से यानी ये लास्ट हिस्सा है हमारे थ्रोट का। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो हलक का यानी गले का आखिरी हिस्सा है जो हमारे लंग्स के साथ मिला हुआ है, यहाँ से हमारे पास ह और हमजा, ह हमजा, बिल्कुल सीधा, कोई मेहनत नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ। ह हमजा, बिल्कुल जैसे आप लंग्स से बिल्कुल अपनी हवा को बाहर निकाल रहे हैं। ह हमजा, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम जानेंगे तो दे आर प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट, यानी बॉटम थ्रोट जो है वहां से ये दो हरूफ अदा होते हैं। इनकी मिसालें अगर हम जानेंगे, जैसे हमारे पास हमजा के ऊपर जबर दे दीजिए जिसको हम मफ्तूह कहते हैं, तो ये बनेगा आ, मकसूर ई, मजमूम उ। मफ्तूह कहते हैं जबर के साथ, क्योंकि फतहा जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, और दुम्मा जो है वो पेश को कहते हैं। अगर किसी हर्फ के ऊपर जबर है तो उसको मफ्तूह कहते हैं, अगर जेर होगी तो उसको मकसूर कहते हैं, अगर पेश होगा तो उसको मज़मूम कहते हैं। अब इन टर्मिनोलॉजीज को आप धीरे धीरे करके याद रखिएगा, क्योंकि हम तजवीद पढ़ रहे हैं वो भी अरबिक में, तो इन चीजों को आपको धीरे धीरे आप याद रखना पड़ेगा। अभी याद नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, आप हमजा जबर आ पढ़िए, हमजा जेर ई पढ़िए, हमजा पेश उ पढ़िए, ठीक है। आ ई उ, आ ई उ, ऐसे पढ़िए आप, क्योंकि ये जैसे हमारी जो क्लास होती है ना, उसमें हम प्रैक्टिकल इसको कराते हैं। आप भी मेरे साथ इसको दोहराइए, आ ई उ, ये मुफरदात है, मुफरदात मतलब सिंगल। ऐसे अगर हम अलिफ हमजा के ऊपर सुकून देखेंगे, सुकून का मतलब होता है जज्म, ठीक है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे, फा तू। याद रखिएगा, हमजा के ऊपर अगर आप जज्म देखेंगे तो हमजा को हम झटका करते हैं। झटके का मतलब ये होता है, एक सेकंड के लिए आवाज रोकिए, उसके बाद उसका जो दूसरा हर्फ होगा वो अदा कीजिए। जैसे इसको हम फातू नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको, फा तू, फा तू। ये कब होता है, जब भी आप हमजा के ऊपर जज्म देखेंगे, सुकून देखेंगे। सुकून भी इसको कहते हैं, जोटी दाल जो बनी होती है, इसको हम जज्म भी कहते हैं। जब भी आप हमजा के ऊपर जज्म या सुकून देखते हैं, उसकी आवाज को हम झटका, झटके का मतलब जैसे कि मैंने अर्ज किया, आवाज को रोक कर आगे चलते हैं। फा तू, कुरान में है फा तू बिसूरतिम मिन मिथलिही, फा तू। ये कब होता है, जब भी हमजा के ऊपर जज्म होगा। याद रखिए, जबर जेर पेश होगा हमजा पे तो नॉर्मल पढ़ा जाएगा, जैसे आ ई उ, लंबा भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं आ ई उ, वो गलत है। आपको लंबा नहीं करना, एक अलिफ के बराबर भी नहीं करना, बल्कि एक हरकत के बगैर। हरकत का मतलब होता है जब तक इस उंगली को आप बंद करेंगे, इसको कहते हैं हरकत, या जब तक आप बंद बंद उंगली को खोलेंगे, इसको कहते हैं एक हरकत। जैसे पढ़ेंगे आ ई उ, समझ रहे हैं बात, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस जितनी होगी वो ज्यादा अच्छा होगा। और जब भी इस पे सुकून होता है हमजा पे, इस पे होता है झटका, फा तू बी समा युमिनूना। अब कुरान मजीद में कितनी बार इस्तेमाल हुआ है युमिनूना, और अक्सर हम, अगर आप तजवीद नहीं जानते तो लोग पढ़ते हैं युमिनूना, ये गलत है। पढ़ना कैसे है, युमिनूना, यू के बाद थोड़ा सा आवाज रोकिए एक सेकंड के लिए, उसके बाद पढ़िए युमिनूना, युमिनूना, ठीक है। ये हमजा की मिसाल। मुरक्कबात की मिसाल करेंगे। मुरक्कबात मतलब जिसमें हमजा आप किसी लफ्ज में इस्तेमाल हुआ है, जैसे यहां पर है यस आलू, आ, बिल्कुल आराम के साथ, सुईला, मकसूर, युनब्बिउहुम, युनब
बी उ हुम उ, ठीक है। इसी तरह ता तू, ऊपर वैसी मिसाल की है तो यहाँ पर मुरक्कब है, मुरक्कब ही है। ता तू झटका, बी समा, इसी तरह यू मीनूना। तो यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि अक्सर हालत जो है, थ्रोट का आखिरी हिस्सा, यहां से हमारे पास हमजा अदा हो रहा और हा अदा हो रहा, गोल हा। और हमजा जब जबर जेर पेश होगा तो नॉर्मल तरीके से पढ़ा जाता है, लंबा भी नहीं करना, बिल्कुल झटका भी नहीं देना। मगर जब भी हमजा के ऊपर आप जज्म देखेंगे, आप याद रखिएगा हमजा को हमें झटका देना है, आवाज थोड़ी रोक कर, 1 सेकंड रोक कर आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास हा है, गोल हा। इसको कैसे पढ़ेंगे? ह ही हु, बिल्कुल सीधा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं, आसान तरीके से पढ़ना, बिल्कुल आवाज को बाहर निकालना है। ह ही हु, यानी हमजा मफ्तू ह, हमजा मकसूर ही, हमजा मदमूम हु, या हमजा जबर आ जैसे हम पढ़ते थे। ये हा है, ये हमजा नहीं है, हा है। हा जबर हा जेर ही, हा पेश हु, हा मफ्तू हा मकसूर ही, हा मदमूम हु। इसी तरह अगर हम हमजा को साकिन बनाएंगे, ये कैसे पढ़ेंगे? तह तादू। अब देखिए मैं कैसे अदा कर रहा हूं, तह, बिल्कुल आवाज रिलैक्स करके, मुंह से आवाज बिल्कुल छाती से बाहर निकल रही है। तह तादू, इह दीना, कितनी बार आप कुरान में पढ़ते हैं इह दीना सिरातल, है ना। इह दीना, बिल्कुल आवाज को बाहर निकालिए, हवा को, जो अक्सा हलक है उसको बिल्कुल बाहर निकालिए। इसी तरह मुहतदीना, मुह, बिल्कुल आवाज बाहर निकालिए। मुरक्कबात में अशहदु, अशह, आराम से, अशहदु रब्बिहिम, हिम, मिन हुम पेश के साथ, तह तादू, इहदिना, मुहतदीना। तो ये तो हमारे पास मिसालें हो गई हमजा और हा की, जो कि अक्सर हलक से अदा होते हैं। इन्हें गले का जो आखिरी हिस्सा है वहां से ये दो रूप अदा होते हैं, बिल्कुल आसान, कोई ज्यादा मेहनत नहीं। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो आवाज छाती में है उसको हमें बाहर निकालना है, विदाउट एनी प्रैक्टिस, ज्यादा मेहनत नहीं, और ज्यादा इस पे गौर भी नहीं करना, क्योंकि वैसे ही अदा हो रहा है। उसके बाद वो दो हरूफ जिन पे मेहनत करनी है, वो है वसतुल हलक के हरूफ। वसतुल हलक में, यानी मिडल ऑफ द थ्रोट में, हमारे पास दो हरूफ है, एक है आइन, दूसरा है हा। आइन और हा प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट, दरमियानी हिस्से से अदा हो रहे हैं। याद रखिएगा, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, मिडल वाले थ्रोट से अदा हो रहे हैं। इनकी मिसाल अगर हम देंगे तो मुफरदात में इनकी मिसाल देंगे, कैसे पढ़ेंगे? आइन जबर आई, आइन जेर आई, और आइन पेश अ, इसी तरह ठीक है। अगर मुरक्कब पढ़ेंगे तो अन अमत, आइन से अन अमत, इसी तरह इल्मुन, इल्मुन, इसी तरह उलूमुन। अगर इन पे जबर जेर पेश होता है तो आइन जो है वो बिल्कुल हल्का हमें दिख रहा है कि अदा हो रहा है, मगर आइन आपको अच्छी तरह से देख पाएंगे कि अदा हो रहा है जब इस पे सुकून होगा। जैसे यअलमु, या, ये यालमु नहीं पढ़ेंगे, वो अलग माने होगा, ये आइन से पढ़ना पड़ेगा। आइन का मखरज वसतुल हलक, दरमियानी हिस्सा, यअलमु, इअलमु, उअबुदुल्लाह, अब देखिए आइन को कैसे मैं अदा कर रहा हूं मैं ज्यादा थोड़ा एग्जेजरेट भी कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, हालांकि इतना नहीं करना पड़ता, मगर मैं आपको थोड़ा इसलिए भी एग्जेजरेट करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आपको पता हो जाए कि आइन को हमें हमजा के साथ नहीं मिलाना, ये अलग अलग हरूफ है, इनको वसतुल हलक से अदा करना है। इसी तरह हा है, हा, ही, हु। अब देखिए हा वो गोल हा था, ये हा है, हा, ही, हु। आप मेरी आवाज पे गौर कीजिएगा। इसी तरह अह, इह, उह। अगर मुरक्कब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे हमीदा, रहीमा, हुक्मुन, अहमदु, अह, अहमदु, इहसानुन, मुहसिनुन, मुह। अब देखिए हा कहां से मैं अदा कर रहा हूं, तो इस पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, हा और आइन, क्योंकि बरसगीर के लोगों में इसको पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। आखिर मखरज जो हलक से है वो है अदन अल हलक,
اس سے غین اور خا ان کو ادا کرنے تھوڑی سی آواز موٹی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی خراش پیدا ہوتی ہے. پروناؤنسڈ فرام دا ٹاپ پارٹ آف دا تھروٹ، جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے. ان کی مثال میں سب سے پہلے غا، غی، غو. آپ دیکھیں ادا کرتے وقت تھوڑی سی خراش، جیسے وہ نزلہ ہوتا ہے نا، تھوڑی سی خراش ہو جاتی ہے، اسی طرح ادا کرنے. غا، غی، غو، اغ. اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ غین کی آواز جب ساکن ہو، اس کی آواز کو ہمیں ریباؤنڈ نہیں کرنا، روکنا ہے. کیسے؟ اغ. اب بہت سارے کہیں گے آغ، غلط ہے، آغ نہیں ہے. یہ کیسے پڑھنا ہے؟ آغ، آواز روکے. اغ، اغ، مگر تھوڑی سی خراش کے ساتھ. اسی طرح غفور، مرکب میں بغیہ، غروب، مغفرتن. دیکھیے جب ساکن ہوگا کلیئر ہو جاتا ہے. مغفرتن، استغفار، طغیانا. اسی طرح خا ہمارے پاس ہے، خا، خی، خو، اخ، اخ، اخ. تھوڑی سی خراش آپ دیکھیں گے. مرکب میں خوف، آخر، خلق، مخلوق، اخبت، یخرجو. اب دیکھیں خا اور غین پڑھتے وقت میں نے تھوڑی سی خراش کر لی، ان کو موٹا ہم نے پڑھ لیا. یہ ادنی الحلق سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آخر میں جو سورۃ الفاتحہ کو ہم ادا کریں گے، اس میں ان حروف پہ آپ توجہ رکھیں گے جو آج ہم نے جانا. آپ میرے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. چونکہ آپ مائک بند کر چکے ہیں تو آپ مائک بند کر کے یا کھول کے بھی ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو لائن ٹو لائن اس کو پڑھاؤں گا. منیر صاحب آپ مائک کو کھول سکتے ہیں. ابھی تنویر صاحب یہاں تھے، اگر وہ بھی کھولے تو آپ میرے ساتھ اس کو دہرا سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اس میں آپ نے دیکھا ہا اور عین کو کیسے میں نے ادا کیا. الرحمن الرحیم. رحمان، ہا کو آپ دیکھیے گا. رحیم، ہا کو میں نے ایسا کیسے ادا کیا. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، عین کو یاد رکھیے گا. نستعین، عین کو یاد رکھیے گا. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط میں گول ہا جو ہے اس کو توجہ رکھیے گا. میں نے کیسے پڑھا؟ اهدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم. انعمت، عین پہ آپ توجہ رکھیے گا. علیہم، عین پہ توجہ رکھیے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر غین پہ آپ توجہ رکھیے گا. غیر پھر مغضوب، غین پہ پھر سے. یہاں تو غین کے اوپر زبر ہے، مفتوح ہے. مغضوب میں غین پہ اوپر سکون ہے. اس کو ہمیں اکثر جو ہم برصغیر میں ہم غلطی کرتے ہیں، جو تجوید نہیں جانتے، وہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب. غلط، آواز کو ریباؤنڈ نہیں کرنا، آواز کو روکنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اب آپ مائک کھول سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی سوال ہے آج کے درس کے بارے میں. ہمارے پاس تقریباً 3.5 منٹ ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں. آپ منیر صاحب آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ہمارے پاس ایک اور ساتھی، جی منیر صاحب اس سورت کو آپ پڑھنا چاہیں گے؟ بالکل. جی آپ پڑھیے، بسم اللہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین. بہت اچھی کوشش. الرحمن الرحیم. ہا پہ مشق کیجیے گا. الرحمن الرحیم، بہترین، شاباش.
अर्रहमानिर रहीम। मेहनत करनी पड़ेगी, शाबाश, आगे मा आगे बढ़े। मा- मालिकी यौमिद्दीन। शाबाश, माशाल्लाह। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाबाश, अच्छी कोशिश। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना को बिल्कुल फ्लो के साथ पढ़िए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। शाबाश। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम हम्म। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन, माशाल्लाह। एक चीज आपने भी नोट किया होगा, जब आपने गैरिल मग़दूबी पढ़ा ना, ये आपकी गलती नहीं, हम अक्सर लोग ये गलती करते हैं। आपने मग़दूबी को मग़दूबी पढ़ा, जो अक्सर गलती हो जाती है। गैन की जो आवाज है ना यहाँ पर मग़दूबी में, इसको हिलाना नहीं है। इसको कैसे पढ़ना है? गैरिल मग़दूबी, आवाज को रोकिए, मग़दूबी, मग़दूबी नहीं, क्योंकि इस पे रिबाउंड नहीं होता, कलकला नहीं होता गैन। इसको फिर से पढ़े, गैरिल। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। माशाल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन, बारकल्लाह फीकुम। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। चाहता है इस लेक्चर को भी हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और आप इसको इयादा कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सैटरडे में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कोई भी अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो या किसी चीज़ की मशक करनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, या मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।